Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम फुल A1 एग्जाम सॉल्व करके देखेंगे। साथ साथ आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जो कि रियल लाइफ एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकती हैं। So, los geht's! जी, तो A1 का एग्ज़ाम शुरू होता है hören से, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 20 मिनट का। ऑलमोस्ट circa का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली। इसके इंस्ट्रक्शंस हैं: Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. इस टेस्ट के 3 पार्ट्स हैं और आप सुनेंगे शॉर्ट कन्वर्सेशंस और अनाउंसमेंट्स। Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. हर एक टेक्स्ट के लिए आपको एक टास्क मिलेगी। Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. पहले आप टास्क पढ़िए और उसके बाद लिसनिंग कीजिए टेक्स्ट की। Kreuzen Sie die richtige Lösung an. मार्क कीजिए करेक्ट आंसर और उसके बाद है Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. ये आपने पार्ट नहीं भूलना कि जब hören कंप्लीट सुना दी जाएगी आपको तो आपने एंड पे थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं उनको अपनी आंसरिंग शीट में ट्रांसफ़र करना है। Hören Teil 1 है Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Teil 1 में आपको सारी की सारी कन्वर्सेशंस 2 बार सुनाई जाएंगी और उन्होंने बाइस्पिल हमें सॉल्व करके बता दिया है, जो कि है Welche Zimmernummer hat Herr Schneider? मिस्टर स्नाइडर का कमरा नंबर क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास Zimmer 2, Zimmer 245, Zimmer 254। तो इसका करेक्ट आंसर से है। अब आप इसकी ऑडियो सुनेंगे 2 बार। Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Hören की Aufgabe 1 है Wo gibt es Kleidung für Kinder? कहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलेंगे? Im 1. Stock, im 2. Stock oder im 4. Stock। अब हम लिसनिंग करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन से फ्लोर पर बच्चों के कपड़े मिलेंगे। Nummer 1. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im 4. Stock. Damenkleidung im 1. Hier, im 2. Stock findest du Kinderkleidung. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im 4. Stock. Damenkleidung im 1. Hier, im 2. Stock findest du Kinderkleidung. आपने नोट किया कि लेडीज ने इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बात की है। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जितनी भी लिसनिंग टास्क आप सॉल्व करें तो उनको बार बार सुनकर प्रैक्टिस किया करें कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और जो इनकरेक्ट हैं वो क्यों इनकरेक्ट हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। पे करेक्ट आंसर है क्योंकि हम सुनते हैं Hier im 2. Stock findest du Kinderkleidung। अच्छा, यहाँ पर देख लें, डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पर Kleidung für Kinder लिखा हुआ है, बच्चों के लिए कपड़े, और ये इकट्ठा एक वर्ड लगा है, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता वो gibt es Damenkleidung, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होना था। आइए चलते हैं Aufgabe 2 की तरफ। Was bestellt die
Dame, लेडी क्या ऑर्डर करती है? Hähnchen, Fisch oder Salat? Nummer 2. Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. लेडी को खेलना कुछ और सजेस्ट करता है और ऑर्डर वो कुछ और चीज करती है। तो लेट्स सी के करेक्ट आंसर क्या है। से है करेक्ट आंसर क्योंकि लेडी कहती है एंड में Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. सलाद अच्छा आइडिया है, आप मेरे लिए लाइए प्लीज। यहाँ पर आप देखें ब्रिंगन जी मियाँ बिटे है और यहाँ पर बिस्टेल्ट लिखा हुआ है। बिस्टेलन कहते हैं ऑर्डर करने को। कोई चीज़ जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बिस्टेलुंग करवाते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसलिए फिर ऑर्डर करती है वो Salat। Aufgabe 3 है Wie lange hat das Museum am Mittwoch geöffnet? मिटवॉक का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इस दिन के बारे में पूछा जा रहा है कि म्यूजियम कितनी देर तक खुला है। ऑप्शंस हैं bis 15 Uhr, bis 18 Uhr oder bis 22 Uhr। इसकी लिसनिंग के फौरन बाद हम आंसर चेक करेंगे। Nummer 3. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja, am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet. Und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja, am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet. Und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. लेडी कहती है am Mittwoch Nachmittag schließen wir schon um 15 Uhr। तो इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट है। जब लड़का उससे Eintrittskarte मांगता है तो वो कहती है हम तो हाफ एन आवर में म्यूजियम बंद करने लगे हैं। तो वो कहता है इतनी जल्दी क्यों? तो फिर वो सारी तफसील बताती है कि मिटवॉक को हम इतने बजे करते हैं, बाकी दिनों में हम इतने बजे करते हैं और कौन से दिन में हम 22 Uhr तक खुले रहते हैं। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क। Welchen Sport empfiehlt der Arzt? कौन सा खेल रेकमेंड किया है डॉक्टर ने? Fahrradfahren, Fußball oder Laufen? Nummer 4. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein, da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Radfahren das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein, da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Radfahren das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. आदमी कहता है Nein, für mich ist Radfahren das Beste, sagt mein Arzt। नहीं, मेरे लिए साइकिल चलाना बेस्ट है, बेहतरीन है, मेरे डॉक्टर ने कहा है। और उसके बाद वो ये भी कहता है Laufen ist nicht für mich। तो ये फिर आ करेक्ट है। Aufgabe 5 है वो macht Familie Bauer Urlaub। फैमिली बावा छुट्टियां कहाँ कर रही है? Am Meer, bei Verwandten
oder zu Hause. Nummer 5. Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? लेडी कहती है, Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. इस साल हम विजिट कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को साउथ जर्मनी में. Wie lange dauert der Flug nach München? म्यूनिख की तरफ जाने वाली फ्लाइट कितनी देर की होती है? 30 Minuten, 45 Minuten oder 50 Minuten? Nummer 6. Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. लड़की पूछती है, Wie lange fliegst du von hier nach München? तो आदमी कहता है, Nicht lange, nur 50 Minuten. और अगर आपको ये समझ नहीं आया कि आ और बे के लिए वो किन किन चीज़ों की बात कर रहा था, तो आप दोबारा से इसको रिपीट करके ऑडियो को सुन सकते हैं. Hören Teil 2 में 4 टास्क होती हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें अनाउंसमेंट सुनाई जाती हैं, लेकिन वो एक एक बार सुनाई जाती हैं. तो ये पार्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे टफ लगता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसी पार्ट की करें. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Kreuzen Sie an, richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal, जो कि मैंने अभी आपको बताया. और इसमें भी एक बाइस्पिल उन्होंने हमें सॉल्व करके बताई हुई है, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे. तो ये है, Frau Gundlach soll zur Information in Halle से kommen. तो आइए सुनते हैं कि इसकी ऑडियो कैसी है. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. पैसेंजर्स को ट्रेन में ही बैठे रहना चाहिए. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des ICE 987 nach Frankfurt. Eine wichtige Information. Am nächsten Bahnhof müssen wir kurz anhalten. Es gibt Probleme mit dem Bordcomputer. Bitte steigen Sie nicht aus. Wir fahren gleich weiter. अनाउंसमेंट में कहा जाता है, Es gibt Probleme mit dem Bordcomputer. Bitte steigen Sie nicht aus. Wir fahren gleich weiter. आपको पता है कि aussteigen का मतलब होता है उतर जाना. तो जब यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट की जा रही है steigen Sie nicht aus, तो इसका मतलब है Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. तो ये richtig है. Fluggäste nach Rom sollen zu Ausgang A7 kommen. आपने A7 का ध्यान रखना है. यहाँ पर कुछ मज़े की बातें बताती चलूँ. सिंपल अगर गेस्टे हो तो उसका मतलब होता है गेस्ट, टूरिस्ट वगैरह. और अगर फा गेस्टे हो, जैसे कि हमने पिछली टास्क में देखा था, तो उसका मतलब है पैसेंजर्स, लेकिन बस के, ट्रेन के. और अगर फ्लू गेस्टे हो तो इसका मतलब है हवाई जहाज़ के पैसेंजर्स. ठीक है, तो अब हम इसकी लिसनिंग सुनेंगे और उसके बाद आंसर चेक करेंगे. Nummer 8. Achtung!
Eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rom. Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock. Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist zurzeit besetzt. Ich wiederhole. Passagiere nach Rom, bitte Ausgang B18. अनाउंसमेंट्स को सुनना हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि एक तो वो ज़्यादा तेज़ी से बोली जा रही होती हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही होती है, जैसे कि इस अनाउंसमेंट में भी था। तो 2 लाइंस जिसमें हमारा आंसर था वो मैंने लिखी हैं यहाँ पर। Eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rom। आप देखें जहाज़ का उन्होंने नंबर बताया है कि वो कहाँ को जा रहा है, क्योंकि हमें भी रोम की ही तलाश थी कि रोम में किस जहाज़ से जाना है और कहाँ पर जाना है गेट नंबर की तरफ। तो उसके बाद कहता है बिटे कॉमन जी सु आउसगंग बे 18। तो इसलिए ये फाल्श है क्योंकि यहाँ पर आजीबन लिखा था, लेकिन आजीबन की भी बात अनाउंसर करता है और वो कहता है कि वो बिजी है तो आप इस गेट की तरफ आ जाइए। Die Urlauber sollen 4 Uhr am Bus sein। उअलाउब से उअलाउबा बन गया। उअलाउब आपको पता है कहते हैं छुट्टियों को, तो उअलाउबा वो लोग जो छुट्टियां मना रहे होते हैं उनको लिखा हुआ है 4 बजे बस में होना चाहिए। अब फिया उआ इम्पॉर्टेंट है और इसी पे आपने फोकस करना है कि कितने बजे उनको बस में होना चाहिए, तो इसकी लिसनिंग कर लेते हैं। Nummer 9. Liebe Urlauber, wir machen jetzt eine Pause von 1 Stunde. Sie können einen Kaffee trinken oder das kleine Museum direkt am Meer besuchen. Aber bitte, um 14 Uhr fahren wir weiter. Bitte kommen Sie pünktlich zum Bus. Wir möchten nicht warten. ये फाल्श है क्योंकि कहा जाता है 14 Uhr fahren wir weiter. Bitte kommen Sie pünktlich zum Bus। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए बस की तरफ आ जाइएगा। और हमने आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जर्मन क्लॉक 24 स्टुंडन का वो फॉलो करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान इधर उधर आपका हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस तरह की चलाकियां करते हैं वो एग्ज़ाम पेपर सेट करके, तो हमने उनकी चलाकियों में नहीं आना और फिया की बजाय फियत सेन, अगर इस तरह की कंफ्यूजिंग उन्होंने वर्ड्स और लिसनिंग में आपस में तजाद है ना, डिफरेंट है दोनों इन्फॉर्मेशंस, तो इस तरह की चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। Teil 2 की लास्ट टास्क है Der Vater von Mario soll sofort zur Information gehen। मारियो के पापा जल्दी फौरन इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं। Nummer 10. Liebe Kunden, das waren unsere Sonderangebote für heute. Und nun noch eine dringende Ansage. Der kleine Mario sucht seinen Vater. Kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter im ersten Stock. Mario wartet dort auf Sie. ये रिश्तिश है क्योंकि अनाउंसर कहती है Der kleine Mario sucht seinen Vater, kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter। छोटा मारियो ढूंढ रहा है अपने पापा को, प्लीज आप आ जाइए जल्दी इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ। यहाँ पर आप देखें जोफोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्नेल लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जल्दी। Hören Teil 3 है Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C। Sie hören jeden Text zweimal। तो इसमें भी अच्छी बात यह है कि 2 बार हमें ऑडियो सुनाई जाएंगी और ये भी मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट का है। तो आइए देखते हैं फिर इसकी फर्स्ट टास्क क्या है। Wann soll Frau Krause anrufen? मिस क्राउजे को कब टेलीफोन करना चाहिए? Vor 13 Uhr, 1 बजे से पहले पहले। Zwischen 13 und 18 Uhr, 1 और 6 के दरमियान। Oder zwischen 18 und 19 Uhr। Nummer 11. Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Bitte rufen Sie uns nach 13 Uhr wieder zurück. Heute sind wir bis 19 Uhr hier. Nein, Entschuldigung, heute ist ja schon Freitag. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. Autohaus Meier.
Guten Tag, Frau Krause. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Bitte rufen Sie uns nach 13 Uhr wieder zurück. Heute sind wir bis 19 Uhr hier. Nein, Entschuldigung, heute ist ja schon Freitag. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. ऑप्शन पे करेक्ट है क्योंकि आदमी कहता है बिtte rufen Sie uns nach 13 Uhr zurück और उसके बाद कुछ और बातें करता है और कहता है heute nur bis 18 Uhr। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है कि इन्होंने हमें इस तरह से ट्रिक किया है कि वो पहले गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, उसके बाद उसके जहन में आता है अरे नहीं, आज तो ये दिन है और आज के दिन हम इतने बजे तक खुले रहते हैं। तो इस रेफरेंस से आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर भूलने की वजह से या कोई गलती करने की वजह से अगर कोई स्पीकर इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद उसको सॉरी करके कोई और इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर नई इन्फॉर्मेशन को करेक्ट माना जाता है। Was möchte Nina heute Abend machen? आज शाम को नीना क्या करना चाहती है? Einen Film sehen, lernen, zu Hause bleiben। lernen तो आई थिंक हम में से कोई भी नहीं करना चाहता, राइट? अच्छा, या फिर घर रहना चाहती है। तो लेट्स सी कि वो इन तीनों ऑप्शंस में से क्या करना चाहती है। Nummer 12. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. और ज़्यादातर जैसे कि होता है इसमें भी ऐसा ही हुआ है, तीनों ऑप्शंस बोली गई हैं, लेकिन नीना ये भी कहती है कि वो आज शाम को फिल्म देखने जाना चाहती है। Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben, मैं घर पर रुकना नहीं चाहती। Im Metropolis gibt es einen guten Film, एक सिनेमा का नाम लेती है कि वहाँ पर एक अच्छी फिल्म है। अच्छा, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या फिर पढ़ना चाहती हो, उससे पूछ रही है वो। तो आपको पता चल गया कि आ करेक्ट है। Was soll Sarah mitbringen? सारा को साथ क्या लाना चाहिए? Ein Deutschbuch, ein Wörterbuch oder eine CD? एक जर्मन की किताब, एक डिक्शनरी या फिर एक CD? Nummer 13. Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. लड़का कहता है Ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? क्या शायद मेरी डिक्शनरी तुम्हारे घर है? उसके बाद वो कुछ और बातें करता है कि यहाँ हो सकती है और कहता है Bring bitte es gleich in den Kurs mit। प्लीज़ इसे साथ ही कोर्स में लेती आना। तो इसलिए फिर बे करेक्ट है। Aufgabe 14 है Wo wollen sich die Frauen mit Sabine treffen? औरतें ज़बीने से कहाँ पर मिलना चाहती हैं? Beim Konzert, im Café oder in der Disco? Nummer 14. Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern, danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert und danach so um 11 in die Disco Aladdin. Wir treffen dich dort, okay? Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern, danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert und danach so um 11 in die Disco Aladdin. Wir treffen dich dort, okay? मारिया अपना सारा प्रोग्राम बताकर कहती है und danach so um 11
इन दी डिस्को अलादीन। डिस्को का नाम भी उसने बता दिया है कि हम 11 बजे उधर होंगे। Wir treffen dich dort, हम तुम्हें वहाँ मिलेंगे। और एंड में पूछती है ओके, तो इसलिए फिर से करेक्ट है। Die letzte Aufgabe ist, wann will Herr Heinze Frau Solms treffen? Mr. Heinze Miss Solms को कब मिलना चाहता है? 12 Uhr, 13 Uhr oder 18 Uhr? Nummer 15. Guten Tag, Frau Solms. Heinze hier. Morgen habe ich bis 12 Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Guten Tag, Frau Solms. Heinze hier. Morgen habe ich bis 12 Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. मिस्टर हाइंजे अपनी Vormittag की रूटीन बताकर कहता है, aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. मिड डे ब्रेक के बाद मेरे पास टाइम है, लेकिन wollen wir uns um 13 Uhr treffen? क्या हम 1 बजे मिल सकते हैं? तो फिर B करेक्ट है। A1 के एग्जाम का सेकंड पार्ट लेसन का होता है और उसके लिए आपको मिलते हैं 25 Minuten। उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, Dieser Test hat 3 Teile, इसके 3 पार्ट्स हैं। Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen etc. आप पढ़ते हैं शॉर्ट लेटर्स, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह। Zu jedem Text gibt es Aufgaben, हर एक टेक्स्ट से रिलेटेड टास्क हैं। Kreuzen Sie die richtige Lösung an, और हमेशा की तरह आपने करेक्ट आंसर मार्क करनी है एक क्रॉस के साथ। तो आइए देखते हैं कि इसके Teil 1 में क्या है। Lesen Teil 1 के लिए हमें कहा गया है, Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5। आप पढ़िए दोनों टेक्स्ट को और टास्क को 1 से 5। Kreuzen Sie an richtig oder falsch। तो करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, आपने मार्क करनी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ये फर्स्ट ईमेल है, इससे रिलेटेड हमने 2 टास्क को सॉल्व करना है और एक बाइस्पिल इसी में से हमें सॉल्व करके बता दी गई है, जो कि है Renate ist nächste Woche in Weimar। रेनाटे अगले हफ्ते वाइमा में है और ये रिश्तिश है। अब हम Aufgabe 1 और 2 देख लेते हैं। Renate macht in Weimar Urlaub। रेनाटे मना रही है छुट्टियां वाइमा में। वाइमा सिटी का नाम है। Sie möchte am Abend mit Nora zusammen essen। वो चाहती है शाम को नोरा के साथ मिलकर खाना खाना। तो लेट्स सी के मेल में वो क्या क्या डिटेल्स शेयर करती है। Liebe Nora, dear Nora, ich bin nächste Woche 3 Tage von Montag bis Mittwoch in Weimar। मैं अगले हफ्ते 3 दिन सोमवार से बुध तक वाइमा में हूँ। Ich muss viel arbeiten। मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। Habe viele Termine। बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो क्या वो छुट्टियां मनाने वाइमा गई है? आपको आई थिंक अंदाजा हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है करेक्ट। तो रेनाटे वाइमा में काम करने जा रही है, छुट्टियां मनाने नहीं, तो इसलिए ये फाल्श है। उसके बाद वो लिखती है Aber am Dienstag ab 18 Uhr habe ich Zeit। लेकिन मंगल को 6 बजे से मेरे पास टाइम है। Können wir uns dann sehen? क्या फिर हम देख सकते हैं? Ich wohne im Hotel Drei Kronen in der Parkstraße। फिर वो अपने होटल का बताती है कि मैं इस होटल में रह रही हूँ। स्ट्रीट बताती है उसकी। Das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant। होटल का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। Wir können dorthin gehen। हम वहाँ पर जा सकते हैं। Was denkst du? तुम्हारा क्या ख्याल है? Ich freue mich auf dich। I look forward to you। इंतज़ार रहेगा उसको उसका। Alles Liebe, Renate। Lots of love, और आगे उसका Vorname है। तो अब आपको आई थिंक रेस्टोरेंट देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि Aufgabe 2 richtig है या falsch।
जी, ये रिश्तिश है, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट का मेंशन ही करती है कि हम वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही है कि हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। नेक्स्ट 3 टास्क हैं। Die Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Sportsfans हर समर में एक ट्रिप करते हैं। Der Bus wartet vor dem Vereinshaus. बस इंतज़ार करती है क्लब हाउस के सामने। Für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. जर्नी और खाने के लिए हर कोई अदा करता है 10 यूरो। Liebe Sportsfreunde vom Verein 1896. ये डियर स्पोर्ट फैंस और आगे उन्होंने क्लब का लिखा हुआ है कि कब से है वो क्लब, और फिर उसके बाद बताया गया है auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. इस साल भी हम चाहते हैं फिर से अपना समर ट्रिप करना। तो इस साल भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो Aufgabe 3 का आंसर आई थिंक हमें मिल गया है ऑलरेडी। Aufgabe 3 richtig है। यहाँ पर auch dieses Jahr जिसका मतलब है इस साल भी, और Sommer Ausflug से हमें पता चलता है कि समर्स में ट्रिप होता है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ था jeden Sommer के हर समर में, तो फिर इसलिए ये करेक्ट है। Wir fahren mit dem Bus an den Jumersee. हम ट्रैवल करेंगे बस के साथ इस लेक पर। Dort wollen wir wandern. वहाँ पर हम चाहते हैं हाइकिंग करना। Und in einem netten Restaurant zum Mittagessen. और एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करना। Abfahrt ist am 27. Juni um 9 Uhr vor dem Vereinshaus. डिपार्चर है 27 जून को 9 बजे क्लब हाउस के सामने से। यहाँ पर हमें Aufgabe 4 का आंसर भी मिलता है। Aufgabe 4 भी रिश्तिश है, क्योंकि यहाँ पर अपफार्ट लिखा था डिपार्चर, और आपको पता है कि बस से ही उन्होंने डिपार्चर करना है अपनी जर्नी के लिए, तो इसलिए ये करेक्ट है। उसके बाद है Die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. बस जर्नी कॉस्ट करेगी 10 यूरो हर शख्स के लिए। Das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. खाना और ड्रिंक्स हर बंदा खुद से पैसे देगा अकेले, अलाइन अकेले। तो अब हमें Aufgabe 5 का आंसर भी मिल गया है, जो कि है फल्श, क्योंकि इसमें लिखा था कि जर्नी और खाने के लिए हर किसी को 10 यूरो देने हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है सिर्फ 10 यूरो जर्नी के हैं, खाना पीना अपने अपने जिम्मे है। और एंड पे लिखा है Liebe Freunde, bitte meldet euch bald an. डियर फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। bis dann और आगे नाम है till then। तो ये नोटिस लगा था, और इस तरह के नोटिस जो कि डिटेल्ड होते हैं उनको भी आपको बेसिक लेवल पर समझना होता है। Lesen Teil 2 है। Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10। 6 to 10 टास्क और टेक्स्ट पढ़िए। Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B। तो इसमें हमने 2 ऑप्शंस में से कोई एक चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। Teil 2 में भी हमें एक सॉल्व बाइस्पिल करके बता दी गई है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि टास्क है जिनमें से हम 2 ऑप्शंस में से मार्क करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर Aufgabe 6 की तरफ। Sie studieren in Frankfurt und möchten eine Wohnung mieten. आप पढ़ रहे हैं फ्रैंकफर्ट में और चाहते हैं एक अपार्टमेंट रेंट करना। ये 2 एड्स हैं, तो देखते हैं इनमें से हमारे लिए क्या सूटेबल है। Wohnen in Frankfurt, रिहाइश फ्रैंकफर्ट में। Wohngemeinschaften, Flat Sharing Communities, Plätze im Studentenwohnheim, Seats in Student Hostel, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen, 1 या 2 कमरे के अपार्टमेंट्स। सेकंड एड है Agentur Spiez, एजेंसी है जिसका नाम ये है। वो कहती है Wir finden für Sie ein neues Zuhause. हम ढूंढते हैं आपके लिए एक नया घर। Günstige Kaufangebote, सस्ती खरीदने के ऑफर्स। Häuser, Wohnungen, Apartments। Häuser किसका प्लूराल है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा ऐड हमारे लिए सूटेबल है
और मैं तो बिल्कुल ऐसे ही साउंड कर रही हूँ जैसे मैं खुद एजेंसी में लगी हुई हूँ और घर बेच रही हूँ। खैर, आंसर की तरफ चलते हैं। दो लफ्ज़ों से हमें पता चलता है कि अनसाइगे आ हमारे लिए सूटेबल है। एक तो फ्रैंकफर्ट और दूसरा वोनुंगन मीटन करना है हमने। हाउजा ओडा वोनुंगन काउफन नहीं करना, खरीदना नहीं बल्कि रेंट पर लेना है, तो इसलिए अनसाइगे आ करेक्ट है। Aufgabe 7 है Sie möchten wissen, आप जानना चाहते हैं। Wie kommt man vom Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? किस तरह से कोई शख्स हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन से हैम्बर्ग एयरपोर्ट तक आ सकता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टास्क है और इसकी जो ऑप्शंस हैं उनमें भी काफ़ी सारे मुश्किल लफ्ज़ हैं, लेकिन इन्हीं टास्क से पता चलता है कि कौन बहुत अच्छी तैयारी करके आइंस का एग्ज़ाम देने आया है। तो अनसाइगे आ में है फ्लूगहाफन हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एयरपोर्ट, उनजगे सर्विस लाइस्टुंगन, हमारी सर्विसेज, फ्लूगहाफन होटल, एयरपोर्ट होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स, Einkaufen, Banken, Geldwechsel, शॉपिंग, बैंक्स, पैसे चेंज करवाने की सर्विसेज, ठीक है। और एंड पर है बेजूखा फ्यूगुंगन, कोई ऐसी ओरिएंटेशन टाइप कोई एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो विजिटर्स के लिए करवाते हैं। और अनसाइगे बे देख लेते हैं आप, जो कि है अनसाइगे बे करेक्ट है, क्योंकि इस ऐड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मालूमात थी एयरपोर्ट पर जो भी एक्टिविटीज़, जो भी सर्विसेज हमारे पास हैं उनकी। और यहाँ पर हमें बस सर्विसेज के बारे में बताया गया था और आप भी यही जानना चाहते थे कि हम हैम्बर्ग बानहोफ से हैम्बर्ग फ्लूगहाफन तक किस तरह से आ सकते हैं या जा सकते हैं, तो इसलिए फिर बे करेक्ट है। Sie suchen ein Angebot für Ihre Urlaubsreise. आप ढूंढ रहे हैं एक ऑफर अपनी छुट्टियों की ट्रिप के लिए। जो दो ऑप्शंस हैं उनमें से फर्स्ट है Der Reiseladen bietet an, The Travel Shop offers, क्या ऑफर कर रहे हैं देखते हैं। Heute Abend aktuell, आज शाम, aktuell कहते हैं रीसेंट को, लेटेस्ट को। Meine schönste Reise, मेरा खूबसूरत तरीन सफ़र। Unsere Mitarbeiter erzählen von ihren Expeditionen, हमारे वर्कर्स बताते हैं उनके एक्सपेडिशंस के बारे में। 20 Uhr im Laden, 8 बजे शॉप में। तो अनसाइगे बे देखते हैं कि उसमें क्या डिटेल्स हैं। ये लिखा हुआ है जी स्पानियन अबफ्लूग, ये डेट है कि कब है डिपार्चर स्पेन के लिए। अब हनोवर, हनोवर से, हनोवर जर्मनी का एक शहर है। होटल के बारे में थोड़ी डिटेल्स दी हुई हैं कि और पैसे बताए हुए हैं 370 Euro pro Woche mit Halbpension। हालपेंसियोन कहते हैं ऐसी सर्विस को कि आपको होटल का कमरा भी मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और साथ में एक मेन जो लंच या डिनर कोई भी एक होगा वो मिलता है, तो उसको हालपेंसियोन कहते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास तुर्काई, टर्की की। अब फ्लूग ये डेट है, अब हैम्बर्ग, हैम्बर्ग से जाएगा प्लेन, क्लब और आगे भी नाम है, फिर प्राइस है और 465 Euro pro Woche, इतना पर वीक, और आगे मेया लिखा हुआ है। तो आप थिंक आपको पता चल गया है कि कहाँ पर हमें अंगेबोट मिल रही है अपनी छुट्टियों की ट्रिप के लिए। अनसाइगे बे करेक्ट है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास, और मेया का मतलब है कि और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के कहाँ कहाँ से डिपार्चर्स होंगे, कौन कौन से एयरपोर्ट से। तो ये आपको सारी मालूमात इस वेबसाइट से मिल रही है, और इसमें तो हमें सिर्फ कहानियाँ ही सुनाई जा रही थी सफ़रों के बारे में, तो ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। Sie suchen eine Wohnung für Ihren Urlaub. आप ढूंढ रहे हैं एक अपार्टमेंट अपनी छुट्टियों के लिए। अब आप सोचेंगे कि हर दूसरे तीसरे टास्क में ही आपको urlaub मिल रही है, तो एक्चुअली ये जर्मन लाइफस्टाइल को इंडिकेट करता है। अक्सर जर्मन साल में एक आध बार छुट्टियों पर ज़रूर जाते हैं। तो हमारे पास जो अनसाइगे आ है उसमें लिखा है Schöne Dreizimmer-Wohnung im Zentrum von St. Peter-Ording, 5 Minuten zum Meer। खूबसूरत 3 कमरों का अपार्टमेंट सेंटर में है, यहाँ पर उसकी लोकेशन बताई जा रही है यहाँ से, और 5 मिनट हैं किस पर, समंदर पर जाने के लिए, ठीक है। तो 450 Euro kalt, 450 यूरो kalt का मतलब है कि सिंपल आपको रेंट पड़ेगा घर का, ठीक है, अपार्टमेंट का। नेबन कॉस्टन एक्स्ट्रा है यानी प्लस,
तो नेबनकोsten में आ जाते हैं एक्स्ट्रा पैसे हीटिंग के, पानी के, गैस के, बिजली के एक्सेट्रा। ठीक है। खाने खुशे कोई किचन नहीं है, तो इस अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस हमें बता दी गई हैं। अब हम अनसाइगे बे देखते हैं, जो कि है फेगियनहॉइजा und Wohnungen, छुट्टियों के घर और अपार्टमेंट्स। फेगियनहॉइजा वो हाउसेस जिनमें स्पेसिफिकली जब हम छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो उनमें रहते हैं। alle großen, हर साइज के। das ganze Jahr, पूरा साल। auch auf den Insel, जजीरों पर भी, और ये जजीरे आगे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर तो हमें बहुत ही वैरायटी मिल रही है, मुख्तलिफ किस्म के घरों की, अपार्टमेंट्स की, साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अगर हम अपना अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं छुट्टियों के लिए तो इन दोनों में से कौन सा ऐड ज़्यादा सूटेबल है। अनसाइगे बे करेक्ट है, हमें इस लाइन से पता चल जाता है, और ये इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि एक ही घर की बात की जा रही थी और वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर था, तो हमें वो सूट नहीं करता। नंबर 10 है Sie arbeiten in Deutschland, आप काम करते हैं जर्मनी में। In Ihrer Freizeit möchten Sie Fußball spielen, अपने फ्री टाइम में आप चाहते हैं फुटबॉल खेलना। Anzeige A है aktuelle Informationen aus der Welt des Fußballs, करंट इन्फॉर्मेशंस फुटबॉल की दुनिया से। Hier finden Sie alles über, यहाँ पर आप पाएंगे हर चीज़ पर, किस पर? Die Spiele, the games, die Fußballstars, the football stars, die Ergebnisse, the results, die Mannschaften, the teams। तो इस ऐड में तो हर चीज़ रिलेटेड है फुटबॉल की गेम से। Anzeige 2 देख लेते हैं। Welcher Verein für meinen Sport, मेरे स्पोर्ट के लिए कौन सा क्लब है? Klicken Sie an, क्लिक कीजिए। टेनिस, स्क्वाश, Leichtathletik, Athletics, Radsport, Cycling, Fußball, Basketball, Schwimmen oder Wasserball। तो अंदाज़ा हो गया राइट कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, क्योंकि आप अपने फ्री टाइम में फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल की खबरें तो सुनना चाहते नहीं हैं राइट। अनसाइगे बे करेक्ट है क्योंकि इसमें हमें ऐसा फाइन अवेलेबल है जिसमें हम फुटबॉल खेल सकते हैं। Lesen Teil 3 है Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch। तो इसमें भी करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क करने हैं हमने। इस पार्ट में भी हमें एक बाइस्पिल सॉल्व करके दी हुई है। अच्छा, यहाँ मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ज़रूर एग्जाम्पल्स को भी एनालाइज करें कि जो भी करेक्ट आंसर्स उन्होंने मार्क किए हुए हैं वो किस तरह से हैं, और उसको समझने की कोशिश किया करें। Aufgabe 11 am Fahrkartenautomaten, टिकट मशीन पर लिखा है, ये नोटिस है, लेकिन पहले हम टास्क पढ़ लें। Am Samstag können Sie und Ihre Freunde mit dem Ticket für 29 Euro fahren। सैटरडे को आप और आपके दोस्त टिकट के साथ 29 यूरो में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस नोटिस में देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिन, जब भी ऐसे टास्क हों, दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्राइसेस या कोई डेट्स हों तो वो भी, तो उसका आपने ध्यान रखना होता है। टिकट है जी बायर्न टिकट, ein Tag 5 Personen 29 Euro, एक दिन 5 लोग 29 यूरो। Montag und Freitag ab 9 Uhr, मंडे और जुम्मे को 9 बजे से। Am Wochenende von 6 bis 24 Uhr, और वीकेंड पर 6 से रात 12 बजे तक। ठीक हो गया। तो सैटरडे था और यहाँ पर वोकनेंडे भी है, ठीक है। और आप और आपके दोस्तों का नंबर नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर 5 लोगों की मेंशन किए गए हैं, यानी ज़्यादा बंदे 29 यूरो में सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि ये रिश्तिश है या फाल्श? ये रिश्तिश ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दिन भी मैच कर रहा है और प्राइस भी मैच कर रही है। तो दोस्त कितने हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग 29 यूरो की टिकट लेकर सफ़र कर सकते हैं। इम होटल सिमा, होटल के दरवाजे पर ये नोटिस लगा है जो कि हम देखेंगे।
लेकिन टास्क है nach 22 Uhr kommen Sie nicht mehr ins Hotel। रात 10 बजे के बाद आप नहीं आ सकते होटल में। निश्ट में आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं आ सकते, नॉट एनी मोर। तो नोटिस है liebe Gäste, dear guests, ab 21 Uhr ist die Haustür geschlossen। रात 9 बजे से जो मेन एंट्रेंस है वो बंद है। Bitte nehmen Sie Ihren Zimmerschlüssel mit। प्लीज साथ ले जाइए अपने कमरे की चाबी। Er ist auch der Hausschlüssel। Er यहाँ पर चाबी को ही रेफर कर रहा है, वो मेन दरवाजे की चाबी भी है। आपकी टास्क में था कि आप रात 10 बजे से ऑनवर्ड्स होटल में आ ही नहीं सकते, एंटर ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ था बेशक मेन दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके कमरे की चाबी आपके पास है तो उसी को आप यूज़ करके मेन होटल का दरवाज़ा खोल सकते हैं, तो इसलिए ये फाल्श है। नंबर 13 Eingang Restaurant। रेस्टोरेंट की एंट्रेंस पर नोटिस लगा है Am Sonntagmittag können Sie in diesem Restaurant essen। संडे मिड डे को आप इस रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। तो देखते हैं कि हम संडे मिड डे को खा सकते हैं कि नहीं। Wir haben für Sie täglich von 11:30 Uhr bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr geöffnet। अच्छा, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोआ और नाख, फोआ मिठाग, नाख मिठाग, अब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पे मुनहसिर करते हैं कि करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। तो ये जो टाइमिंग्स हैं, अगेन 24 स्टुंडन वाले क्लॉक, आपको टाइमिंग्स भी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइम की बात की जा रही है। Auch am Wochenende und an Feiertagen। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आपके लिए हर रोज़ 11:30 से 3 बजे तक और शाम 6 से रात 10 बजे तक खुले हैं, वीकेंड पर भी और छुट्टियों में भी। फायर टागन कहते हैं, मोस्टली आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं होती, ये उनकी बात हो रही है। तो इससे हम देखते हैं कि क्या आंसर था हमारा। हमने संडे मिड डे को खाना खाने जाना था, और क्या हम इस रेस्टोरेंट में खा सकते हैं संडे मिड डे कि नहीं। टाइमिंग्स हमें यहाँ पर बताई गई थी कि ठेगलिश हर दिन 11:30 से 3 बजे तक ये रेस्टोरेंट खुला होता है। auch am Wochenende, वीकेंड में भी। और यहाँ पर भी वोखनएंडे का एक दिन जोंटाग कहा गया था, और मिठाग जो कि आपको पता है 12 बजे होता है, नून मिड डे, तो इसलिए फिर ये रिश्तिश है। Aufgabe 14 है im Kulturverein in the Cultural Club। ये नोटिस है Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen। कोई भी शख्स इस सैटरडे शाम को एक फिल्म देख सकता है। नोटिस पे है ab sofort, अभी से ही, jeden Samstag um 20 Uhr Filmabend। हर सैटरडे को 8 बजे फिल्म इवनिंग। Am 3.5. im Juli von Fatih Akin। Eintritt 2 Euro। 3 मई को ये फिल्म का नाम है जो कि इनकी तरफ से है, एंट्रेंस है 2 यूरो। तो फिर क्या आप सैटरडे शाम को फिल्म देख सकते हैं कि नहीं। नोटिस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सोफोर्ट का मतलब है अभी से ही, और ये दिन जामस्टाग लिखा हुआ था हर हफ्ते को आप देख सकते हैं, तो इसलिए आप इस हफ्ते की शाम को भी फिल्म देख सकते हैं, तो ये रिश्तिश है। Die letzte Aufgabe ist im Bahnhof। रेलवे स्टेशन में। Fahrkarten können Sie an allen Schaltern bekommen। टिकट्स आप हर काउंटर पर हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम हर काउंटर पर टिकट हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये नोटिस में देखते हैं। Kartenverkauf an Schalter 1 bis 3। टिकट सेल काउंटर 1 से 3 पर। Informationen an Schalter 4। इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी काउंटर 4 पर। तो क्या आंसर है, रिश्तिश या फाल्श। अगर आपने सही अंदाज़ा लगाया था तो ये फाल्श है, क्योंकि टिकट्स हमें मिलेंगी काउंटर 1 से 3 पर, और यहाँ पर लिखा था आलन शाल्टर्न, हर एक काउंटर पर, तो इसलिए फिर ये गलत है। कोई सर्टिफिकेट A1 की schreiben के लिए आपको मिलेगा टाइम circa 20 मिनटन का, और इसके इंस्ट्रक्शंस हैं
Dieser Test hat 2 Teile. Sie füllen ein Formular aus und schreiben einen kurzen Text. आप एक फॉर्मूला फिल करते हैं और एक शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं। और उसके बाद है Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen। आप हमेशा की तरह मत भूलें अपने आंसर्स को आंसरिंग शीट में ट्रांसफ़र करना। और लास्ट है Wörterbücher sind nicht erlaubt। डिक्शनरीज आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करना। टाइल 1 की पहले हम डिटेल्स देख लेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्म को फिल करेंगे। Ihre Freundin, ये उनका नाम है। Aus Frankreich, geboren am, इस तारीख को वो पैदा हुई हैं। In Lyon, möchte vom 1. bis zum 28. August einen Deutschkurs in Deutschland besuchen। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी सिटी है, ये उनकी कंट्री है और इस तारीख से इस तारीख तक वो जर्मनी में जर्मन कोर्स करना चाहती हैं, जर्मन कोर्स को विजिट करना चाहती हैं। Sie hat schon 6 Monate Deutsch gelernt। उसने ऑलरेडी 6 महीने जर्मन सीखी है। Sie hat am Vormittag Zeit। अच्छा, बिफोर मिड डे उनके पास टाइम है, ठीक है, आपकी फ्रेंड के पास। In der Schule hat sie Englisch gelernt। स्कूल में उसने इंग्लिश सीखी थी। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमें क्या कुछ करना है। Helfen Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular। अपनी दोस्त की मदद करें और लिखें 5 मिसिंग इंफॉर्मेशंस फॉर्म में। Am Ende schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen। आखिर में लिखिए अपने आंसर्स आंसरिंग शीट पर। तो अब हम फॉर्म देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिसिंग हैं। ये फॉर्म है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रेंड ऑलरेडी इसमें पुट इन कर चुकी है, कुछ मिसिंग है, जैसे कि Geburtsort कहते हैं पैदाइश की जगह, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। Andere Sprachen, दूसरी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद Schon Deutsch gelernt, क्या आप ऑलरेडी जर्मन सीख चुके हैं या oder nein ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है मार्क। अच्छा, ये मुझे लगा था कि ये भी एक है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है जी wie lange, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक सीखी हुई है जर्मन। और Kurztermin, डेट लिखेंगे यहाँ पर जो आप कोर्स अटेंड करना चाहते हैं उसकी। और Kurzzeit लिखेंगे आप, ये 3 ऑप्शंस में से जो भी आपको सूट करता है। तो अब इजीली, आई थिंक काफ़ी इजी है, ऑलरेडी आपने भी काफ़ी आंसर्स गेस कर लिए होंगे। लेट्स सी कि जो आपने आंसर्स गेस किए हैं और जो फाइनल करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने मैच करते हैं। Geburtsort में आप लिखेंगे लेओन, और अगर आप फ्रैंकराइच साथ लिख दें तब भी करेक्ट है, और अगर ना भी लिखें तो भी ये आंसर करेक्ट होगा। उसके अलावा जब andere Sprachen उन्होंने कहा था तो वो होगी इंग्लिश, क्योंकि ऊपर आप देखें Muttersprache में उन्होंने ऑलरेडी उसकी फ्रांसोजिश लिखी हुई है। जब आपने कहना है कि कितनी देर के लिए आपने ऑलरेडी जर्मन सीखी हुई है, ऊपर वाले क्वेश्चन के रेफरेंस से ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 6 Monaten। और kurz की जो ड्यूरेशन है वो आप लिखेंगे 1. bis 28. August। और जो आपके टाइमिंग मैच करती है, आपको पता है कि वो Vormittag में फ्री है, तो उस हिसाब से आप फर्स्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो ये सारे करेक्ट आंसर्स आप अपनी आंसरिंग शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। Schreiben Teil 2 में हमें लेटर लिखने को दिया जाता है और ये फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई सा भी हो सकता है। अगर आपको इन दोनों में फ़र्क नहीं पता तो मैं अपनी वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। इस पेपर में हमें ये लेटर आया है। Sie möchten Ihren Geburtstag feiern und Ihre Freunde Susanne und Paul einladen। आप अपनी बर्थडे मनाना चाहते हैं और अपने दोस्तों को, जिनके नाम ये हैं, इनवाइट करना चाहते हैं। Schreiben Sie an Susanne und Paul, इन दोनों को लिखिए। Warum schreiben Sie, आप क्यों लिख रहे हैं, वजह बताएं लेटर लिखने की। Tag und Uhrzeit, दिन और टाइम बताएं। Kommen wie, आपके ये दोस्त आएंगे तो किस तरह से आएंगे, आप इसके बारे में उनको बताएंगे इस लेटर में। और जहाँ तक इस लेटर की बात है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है। लेटर को ठीक से लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter।
ऑलमोस्ट आपने 30 वर्ड्स लिखने होते हैं और हर एक पॉइंट पे आपने 1 से 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß। उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग भी लिखें। ग्रीटिंग एरिया एंड में होता है लेटर में, और सैल्यूटेशन बिल्कुल बिगिनिंग में होती है जब आप किसी को एड्रेस करते हैं। अपने दोस्तों को खत लिखने के लिए आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लीबे सुजाने und लीबा पाउल। आपको पता है कि डियर के लिए, लड़की के लिए अगर हमने करना है तो हम लीबे बोलेंगे, और लड़के को कहना है डियर तो हम लीबा बोलेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, Ich habe Geburtstag am kommenden Samstag। आने वाले हफ्ते को मेरी बर्थडे है। Ich möchte meinen Geburtstag mit meinen Freunden feiern। मैं चाहती हूँ अपनी बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मनाना। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि राइटिंग को मॉडिफाई आप कर सकते हैं जो उसकी लाइंस हों, लेकिन अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने इस लाइन को बदलकर इस लाइन में कर दिया है, लेकिन mit meinen Freunden का इजाफा किया है। Ich lade euch zu meiner Party ein। मैं तुम्हें, यानी उन दोनों को, ये euch उन दोनों को रेफर कर रहा है, इनवाइट करती हूँ अपनी पार्टी में। Die Geburtstagsfeier findet am Samstag um 18 Uhr statt। Stattfinden एक trennbares Verb लगा है जिसका मतलब है to take place। तो बर्थडे पार्टी टेक प्लेस करेगी, होगी हफ्ते को 6 बजे। Ihr wisst schon meine Adresse। तुम लोगों को पता है ऑलरेडी मेरे एड्रेस का। Ihr könnt mit dem Taxi kommen। तुम लोग आ सकते हो टैक्सी के साथ। उसके बाद आप लेटर को एंड करेंगे, कोई भी ग्रीटिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर बर्थडे की बात थी तो आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, Ich freue mich sehr। मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद bis bald, see you soon, क्योंकि सैटरडे को मिलना ही है दोस्तों ने। और जब आप इनफॉर्मल लेटर को एंड करते हैं तो जस्ट अपना Vorname लिखते हैं। A1 एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट स्प्रेशन का होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं circa 15 Minuten, 15 मिनट। Dieser Test hat 3 Teile। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। Sprechen Sie bitte in der Gruppe। और ग्रुप्स में आपने बात करनी होती है, और ये मोस्टली 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। स्पीकिंग का टाइल 1 होता है sich vorstellen, टू इंट्रोड्यूस oneself। और इसमें इस तरह का क्यू कार्ड होता है, ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं और इनमें आपने अपने बारे में एक एक सेंटेंस इन सारे वर्ड्स पर बोल के बताना होता है। और ये हर एक पार्टिसिपेंट अपने बारे में बताता है और एक दूसरे के साथ इस पार्ट में कम्युनिकेट नहीं करता। वर्ड्स देख लेते हैं। नामे, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf और हॉबी। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि स्प्रेशन का टाइल 1 सबसे इजी है, क्योंकि इसमें अगर आप सारे के सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, आप जाहिर सी बात है अपनी इंफॉर्मेशन को इन लफ्ज़ों पर फिट करके बोलेंगे। Ich heiße Sonja। Ich bin 34 Jahre alt und komme aus Pakistan। Ich wohne in Lahore। Ich kann Urdu, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen। Ich bin Hausfrau। Meine Hobbys sind Kochen und Fernsehen। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर पुट इन करेंगे। जैसे स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं Ich bin noch Student। और अगर लड़की है तो Ich bin noch Studentin। और इसी तरह जो भी आपका प्रोफेशन होगा वो आप यहाँ पर पुट इन करेंगे। लैंग्वेजेस आप इधर बताएंगे और एंड में अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। सिंगुलर होगा तो आप कहेंगे Mein Hobby ist, और जो भी एक हॉबी है वो। और अगर प्लूराल है तो आपने इस तरह से बनाना है Meine Hobbys sind, और जो भी हॉबीज़ हैं, म्यूज़िक hören, फागत फागन, या जो भी आप करते हैं अच्छी तरह आपको पसंद है करना तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे, बल्कि बोलकर बता देंगे। टाइल 2 में हमने क्वेश्चंस पूछने होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। हर स्टूडेंट अपने से नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है और अपने साथ वाले स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देता है। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Informationen bitten
und Informationen geben। इंफॉर्मेशंस के लिए रिक्वेस्ट करना और इंफॉर्मेशन देना। और इसमें दो डिफरेंट आपको टॉपिक्स मिलते हैं और उन टॉपिक्स पर आपने एक ही सवाल करना होता है और किसी और के क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं फिर इस पेपर में हमारे पास क्या थेमा था। वोखनएंडे है जी थेमा हमारे पास, और जो क्यू कार्ड पर लफ्ज़ लिखा है वो है ब्यूशा। तो आपने ब्यूशा पर एक क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि जो थेमा के लफ्ज़ होते हैं उनको ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस में यूज़ करें, लेकिन जो लफ्ज़ होता है उसको तो यूज़ करके आपने सवाल बनाना होता है। तो देख लेते हैं कि हम ब्यूशा को यूज़ करके किस तरह से सवाल बनाएंगे। ये दोनों लफ्ज़ इस तरह के आए थे कि मैंने सोचा इन दोनों को इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे कि liest du Bücher am Wochenende oder lesen Sie Bücher am Wochenende। इसका आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर कर सकते हैं। आप सिंपली या oder nein कह सकते हैं या कंप्लीट भी कह सकते हैं, जैसे कि या ich lese Bücher am Wochenende। हाँ, मैं वीकेंड में किताबें पढ़ता हूँ। सेकंड थेमा है शूले, और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए लफ्ज़ मिला है लेगा, यानी कि टीचर। अच्छा, यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि लफ्ज़ जैसे कि फाटा, मुटा, श्वेस्टा, ब्रूडा, ठांटे, ओमा, ओपा, ओंकल, इस तरह के जो भी रिश्तेदारियों वाले लफ्ज़ आएंगे तो उनके लिए आप सिंपल एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बनाकर बताऊंगी। आप नाम पूछ सकते हैं, जैसे कि वी हाइस्ट या लेगा, आपके टीचर का नाम क्या है। इसी तरह अगर फेमिनिन नाउन हो तो उसके लिए आप ईगे यूज़ करेंगी। और क्या आपको पता है कि इनफॉर्मल तौर पर अगर तुम्हारा और तुम्हारी पूछना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो वो इस तरह से चेंज करेंगे, वी हाइस्ट डाइन लेगा oder वी हाइस्ट डाइने लेगागिन। तो इस तरह आप डिफरेंट सवाल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी खुद से बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी स्पीकिंग पार्टनर रिप्लाई कर देगी, Er heißt Stefan। Sprechen Teil 3 है Bitten formulieren und darauf reagieren। रिक्वेस्ट को फॉर्म करना और उन पर रिएक्ट करना। इस हिस्से में कुछ पिक्चर्स आपको दी जाती हैं और इन पिक्चर्स पर आपने अपने स्पीकिंग पार्टनर से कुछ रिक्वेस्ट फॉर्म करके पूछना होता है। तो आइए देखते हैं फिर आपके हिस्से में कौन सी दो पिक्चर्स आई हैं। कंप्यूटर का क्यू कार्ड मिला है आपको और इस पे आपने रिक्वेस्ट बनानी है, जो कि आप इस तरह से बना सकते हैं। Mein Computer ist kaputt। Kann ich deinen Computer benutzen? मेरा कंप्यूटर ख़राब है, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ? आपको रिक्वेस्ट बनानी आनी चाहिए और उनका रिप्लाई भी करना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो अगर आपसे किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि या, वागुम निश्ट, हाँ क्यों नहीं, नाइन, टुट मी अलाइट, नहीं, आई एम सॉरी। दूसरा क्यू कार्ड आपको ये मिला है और रेडियो ज़ोर से बज रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, Machen Sie bitte das Radio leise। प्लीज़ रेडियो आहिस्ता करो। तो इसको देखते हैं कि आप किस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं Das ist nicht laut। ये कोई ऊंचा तो नहीं है। Oder ja sicher, हाँ ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूं कि जो मैंने दो ऑप्शंस आपको दी हुई हैं उनमें से कोई एक आपने यूज़ करना है। इसी तरह जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक में जवाब देंगे अपने स्पीकिंग पार्टनर को। इस वीडियो में किया जाने वाला एग्ज़ाम लिया गया है गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से और वो था Übungssatz 1। Übungssatz 2 पे मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि A1 एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, उसकी आंसरिंग शीट को फिल किस तरह से किया जाता है, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं विश करती हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने थोड़ी सी मदद की होगी आपको ये समझने में कि हम A1 का एग्ज़ाम किस तरह से अटेम्प्ट
कर सकते हैं। मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।